Hello everyone. In yesterday's video, we have done theorem 10.3 and 10.4 of class 9 circles chapter, right? Theorem 10.3 was that if in a circle a perpendicular is drawn from a center to a chord, then what it does? It bisects the chord. And the converse of this theorem was that a line segment joining center and the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. From these theorems, we have taken one very important result. What was that result? That perpendicular bisector of any chord of a circle, it always passes through what? It always passes through the center of the circle. कि chord का कोई भी perpendicular bisector जो होता है वो कहाँ से पास करता है? It always passes through the center of the circle. Now we'll take some examples of this result. How to use this result in some questions. Like we discussed 10.3 exercise question number 2 first. Question 2 is, suppose you are given a circle, give a construction to find its center. Means we are given a circle. That circle, you can assume that if we draw one circle with the help of Bengal, one circle we draw with compass and one we draw with Bengal. What is the difference between these two circles? The circle which we draw with compass, the center is known, and the circle which we draw with any circular object like Bengal, the center is not known to us. कहाँ पे है center हमें नहीं पता होगा उसका. Now suppose we are given a circle, we draw one circle with the help of Bengal. Now we are asked to find its center now. ठीक है, उसका सेंटर निकालें. कंपास से बनाएंगे सेंटर मार्क हो जाता है, लेकिन जो बेंगल से बनाएंगे उसका सेंटर मार्क नहीं होता. In that question, this result helps us that the perpendicular bisector of the chord passes through the center. बस वही है कि suppose करो हमने एक सर्कल बनाया है with the help of Bengal. ठीक है, we make a circle with the help of Bengal and we are asked to find its center. हमें इसका सेंटर निकालना है. अब क्या करना है? We will draw one chord. ठीक है, एक chord बना लेंगे कोई भी और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना. कंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखना. कैसे? You will keep your compass at A and open it more than half of AB and then draw two arcs, one above, one below, this way. ठीक है, and then keep your compass at B of same radius. You can draw two another arcs. Where the points where these arcs intersect, join that, we get a perpendicular bisector. Now we know perpendicular bisector passes through the center. लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता है कि सेंटर है कहाँ. वी नो कि इसी पे कहीं है, बट कहाँ है वी डोंट नो. फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ वन मोर कॉर्ड. और एक चीज़ ध्यान रखना, जब दो, दैट मीन्स वी नीड्स टू कॉर्ड्स. ठीक है, बट शुड नॉट बी पैरेलल, शुड बी नॉन पैरेलल कॉर्ड्स. सो जैसे ए बी है, दूसरी बी से ही निकाल लेना, ऐसे समथिंग लाइक दैट. बी सी, रिमेंबर कंस्ट्रक्शन है, कंपास से बनाएंगे आप. ठीक है, बी सी, एक कॉर्ड बना ली, दूसरी नॉन पैरेलल कॉर्ड्स हैं ऑब्वियसली, मैंने इंटरसेक्टिंग रखी है. इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे आप, सेम वैसे ही. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रिमेंबर सेम वे, कंपास मोर देन हाफ एंड सेम फ्रॉम सी, द टू आर्क्स वेयर द इंटरसेक्ट्स, join these points. This is the perpendicular bisector of chord BC. Now we got the center. कहाँ पे है center? Center is the point where the two perpendicular bisectors intersect. जहाँ पे ये दोनों perpendicular bisector intersect करेंगे, that will be the center of the circle. Now we see one more example of the same case. ठीक है, that perpendicular bisector of a chord passes through the center. अभी हमने किया कि एक ऐसा सर्कल जो हम किसी बेंगल की हेल्प से बना लें और उसका सेंटर कैसे ढूंढना है, कैसे लोकेट करना है सेंटर, वो दैट वी हैव डन. ठीक है, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसी वर्कशीट की एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल है गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल. अब हमें सर्कल की एक आर्क दी है, जैसी मर्जी हो. रिमेंबर वी नो आर्क्स आर ऑफ 3 टाइप्स,
सेमी सर्कल आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, तो जैसे भी बना सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, सर्कल को कंप्लीट करने को बोला गया है। देखो कैसे, सपोज करो ये एक आर्क है सर्कल की, ठीक है, मैंने माइनर आर्क ले ली, सपोज ये आर्क है सर्कल की एंड आई एम आस्क्ड, लेट्स नेम इट ए बी, दिस इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, और मुझे सर्कल कंप्लीट करने को बोला गया है जिस सर्कल की ये आर्क है। कंसेप्ट फिर से वही जो अभी हमने किया था, क्या करना, आर्क है तो कॉर्ड्स तो बना ही सकते हैं, एक तो पहले ए बी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। सर्कल में क्या बनेगी, ए बी ऑब्वियसली कॉर्ड बनेगी, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे, ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। रिमेंबर सेंटर इसी पे कहीं होगा, पर अभी कहाँ है पता नहीं है, ठीक है। वी नीड वन मोर कॉर्ड, और क्या कोशिश करते हैं हम, नॉन पैरेलल रखने की, दूसरी कॉर्ड ए से ही निकालना, ऐसे ये भी तो उसमें एक कॉर्ड बनेगी, ठीक है, ए सी, ए बी एंड ए सी, फिर से वही, विल ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे, और जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी द सेंटर ऑफ दैट रिक्वायर्ड सर्कल, ये उस सर्कल का सेंटर होगा। अब सर्कल कंप्लीट करना है, वी कैन डू इट इजीली नाउ। हाउ, कीप योर कंपास एट दिस पॉइंट, नेम इट ओ, सेंटर है उस सर्कल का, विल कीप कंपास एट ओ, ओपन इट अप टू ए, ओपन इट अप टू ए मतलब रेडियस ओ ए, ठीक है, ओ बी, ओ सी कुछ भी ले सकते हैं, दैट्स अप टू यू, क्योंकि सारे सेम ही है। ओ ए तक ओपन करना, ड्रॉ वन सर्कल नाउ, और एक काम ज़रूर करना आपने, वो क्या कि ये जो सर्कल बनाएंगे ना, इसको डॉटेड रखना, ठीक है, इससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि दिस पार्ट वाज गिवन, और जो डॉटेड है वो बाद में हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अगर आप एक ही जैसा सर्कल बना देंगे तो उससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलने नहीं वाली है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट द सर्कल फ्रॉम द गिवन आर्क। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हमने डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स बनाने हैं, जैसे भी बनाए जा सकते हैं वैसे। सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, उनमें कॉमन पॉइंट कितने कितने हैं वो लिखने हैं। और थर्ड क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ये बात की बातें हैं, पहले तो फर्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ड्रॉ अ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, सी कैसे कैसे सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। एक, दो सर्कल्स, अभी फ्री हैंड बना रहा हूं तो थोड़ा ऐसे बनेंगे, ठीक है। एक पेयर मतलब सर्कल्स में आपस में कोई लिंक ही नहीं है, एक अलग है एक अलग है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सर्कल्स। बट फिलहाल आप देखें कुछ नहीं है, एक अलग है एक अलग है, नथिंग इज कॉमन, ठीक है। एक वे से हमें बोला पेयर बनाओ सर्कल्स का, कंडीशन कोई नहीं है, जैसे भी बन सकता है वैसे बनाना है, ठीक है। तो एक तो मैंने बना दिया, दोनों अलग अलग हैं सर्कल्स, आपस में कोई लिंक ही नहीं है दोनों का, ठीक है। सेकेंड, द सर्कल्स में इंटरसेक्ट लाइक दिस, These are called intersecting circles। और जब इंटरसेक्ट करते हैं तो at how many point the circles intersect? How many points? 2 points। सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। एक मतलब दिस इज सेकेंड केस हो गया। हमें बोला पेयर ऑफ सर्कल बनाना, कंडीशन कोई नहीं है, जैसे भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, ये क्या कर रहे थे सर्कल्स, दे वर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब मैं करता हूं एक केस ये बनाता हूं, इसको ध्यान से देखना। व्हाट इज दिस, ये 2 सर्कल्स बनाए मैंने, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। कंडीशन तो कोई नहीं है, मेरी मर्जी, जैसे मर्जी बनाऊं। तीसरा केस ये हो गया, ये क्या बोल सकते हैं इसको, हियर द 2 सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। और जब टच कर रहे हैं वी कैन से कि दीज 2 सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, मतलब बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, वी कैन से दीज 2 सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, बाहर से टच करना है। एक पार्ट ये भी हो गया, थर्ड वे हो गया। फोर्थ, द 2 सर्कल्स में टच ईच अदर इंटरनली एज वेल, अंदर से भी एक दूसरे को टच कर सकते हैं। कैसे,
like one circle, the other circle is inside the first circle, and here we can say these two circles touch each other. Here point of contact, इसको बोलते हैं point of contact, जहां दो circles का contact होता है, जहां touch करते हैं, that's point of contact. Here this may also be one case, fourth part, ठीक है, right? और इसमें touching externally, here the two circles are touching internally. ठीक है, and next is I can draw two circles one inside the other. We can say concentric circles. Concentric circles कौन से होते हैं? Circles having same center, ठीक है, and of different radius. Concentric circles बना सकता हूँ. So these are the 5 ways. बस यही हैं 5 ways. इसके अलावा और कोई वे नहीं है दो circles को बनाने का, ठीक है. सो पहला था ड्रॉ अ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स. हमने बना दिया. कितने केसेस हमारे पास निकल के आए सामने? 5 केसेस, ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकंड आंसर इज आस्किंग हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन. इन दोनों सर्कल्स में कितने पॉइंट्स कॉमन है? फर्स्ट केस में कुछ भी कॉमन नहीं है. विल से नन, नो पॉइंट इज कॉमन इन दीज टू सर्कल्स. कॉमन पॉइंट्स मतलब जो दोनों सर्कल्स पे आते हैं, ठीक है. हियर हाउ मेनी पॉइंट्स आर इन कॉमन? ये पॉइंट ए दोनों सर्कल्स पे है, पॉइंट बी भी दोनों सर्कल पे है, तो कितने पॉइंट्स कॉमन हैं? 2 पॉइंट्स आर कॉमन, ठीक है. हियर हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन? ओनली 1 पॉइंट कॉमन. इसमें भी फिर से वही केस, 1 पॉइंट कॉमन, राइट. इन दिस सर्कल पे पॉइंट देखने, रिमेंबर उसका सेंटर नहीं देखना, सेंटर कॉमन हो सकता है बट सर्कल के पॉइंट देखना. सर्कल पे nothing is common here. Again no point is common, none, ठीक है. सबके कितने कितने पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं वो भी लिख दिया. एंड थर्ड क्वेश्चन ही इज आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. इन सभी 5 केसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने थे? सी हाउ मेनी आर दीज? 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर कॉमन. Now we'll take question number 3. Very important question from examination point of view. Question number 3. What question 3 says? It says if two circles intersect at 2 points. दो circles हैं, they are intersecting at 2 points. I have made the diagram at A and B. Prove that their centers. First center I have taken O and second center I have taken O dash. Their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. पहले तो कॉमन कॉर्ड देखते हैं कौन सी. कॉमन मीन्स विच इज कॉमन टू बोथ द सर्कल्स. तो कॉमन कॉर्ड बनती कैसे है सर्कल में? कॉमन कॉर्ड बनती है जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको ज्वाइन कर दो बस, ठीक है. वील गेट 1 कॉर्ड एंड दिस इज कॉमन टू बोथ द सर्कल्स. ये फर्स्ट सर्कल में अगर इस सर्कल को मैं ऐसे नाम दे दूं जस्ट C1 और इस सर्कल को C2 दे दूं तो ये जो कॉर्ड है कॉमन टू बोथ द सर्कल्स, हेंस इट इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड. कैसे बनती है? जस्ट ज्वाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द 2 सर्कल्स, वी विल गेट अ कॉमन कॉर्ड. अब प्रूव क्या करना है कि देयर सेंटर्स O डैश, इसको भी ज्वाइन कर लूं. देयर सेंटर्स दैट इज O एंड O डैश लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. मतलब सिंपल टर्म्स में बोलूं कि हमें यह प्रूव करना है कि ये जो O डैश सेगमेंट बना, कौन सा? जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करता है. ये जो सेगमेंट बना, व्हाट इज इट? इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB. O डैश को AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है. टू प्रूव O डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड AB. कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. ये 4 रेडियाई ज्वाइन करना. ज्वाइन OA, O डैश A, OB एंड O डैश B. सो रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करें तो इट इज़ बेटर टू मेक दैट डॉटेड, ठीक है. इंप्रेसिव दिखती है और डिफरेंट दिखती है, यूनिक सी लगती है, ठीक है. अब देखो इसमें इस पॉइंट को मैं, चलो बाद में नाम देता हूँ, इसको नाम देना है. अभी फ़िलहाल क्या करना है? सबसे पहले ये है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. अगेन कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट ही हमें यहाँ पे हेल्प करने वाला है इस क्वेश्चन में भी. इन मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर मैक्सिमम कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है.
सबसे पहले ये दो ट्राइंगल्स लूंगा मैं, वन अबव ओ डैश, वन बिलो ओ डैश, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल्स? ए ओ ओ डैश, सेकंड का नाम क्या आएगा? बी ओ ओ डैश, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। दे आर इजीली कॉन्ग्रुएंट। देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सर्कल C1, ठीक है। ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, रेडियाई ऑफ सर्कल C2, ठीक। एंड ओ डैश इज कॉमन, तीनों की तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, हैंस कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपलेस कॉन्ग्रुएंसी। ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश ओ बी, सॉरी, एंड रेडियाई ऑफ सर्कल C1, ऐसा कर लेना डिफरेंशिएट करने के लिए। ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, रेडियाई ऑफ सर्कल C2, and O dash equals to O dash, that is common. So therefore we can say triangle AOO dash is congruent to triangle BOO dash. You'll see now कि हमने इनको congruent किया क्यों, ज़रूरत क्या पड़ी। अभी आपको लगेगा पता why we have proved these two triangles congruent। कौन सी congruency लगी है? Tripless congruency। By CPCT these two angles will be equal। बस मुझे ये चाहिए था, इसलिए किया मैंने, और ये आगे मेरी हेल्प करने वाले हैं। नंबरिंग कर दी मैंने इन एंगल्स को। Therefore एंगल 1 comes equal to एंगल 2, दिस इज बाय CPCT। आप इधर वाले दो एंगल्स भी ले सकते हैं, इधर वाले एक ही साइड के लेना। बस इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ M नाउ, अब देता हूँ इसको नाम, ठीक है। नाउ सी, अब करना क्या है हमने, रिमेंबर टारगेट क्या है हमारा? ओ डैश को ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना, ठीक। अब वो बाइसेक्टर प्रूव हो सकता है। अब कौन सी दो ट्राइंगल्स, फिर से कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं हम। ट्राइंगल लेनी है अब मैंने AOM एंड BOM, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगा मैं। यहां से मुझे मेरे दोनों कंसेप्ट मिल जाएंगे, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM कॉन्ग्रुएंट करना है। OA इक्वल टू OB, ठीक है। रेडियाई ऑफ सर्कल C1 एंड दिस OM इज कॉमन, OM इक्वल टू OM कॉमन। एंड वन मोर थिंग, एंगल 1 जो अभी हमने किया इक्वल टू एंगल 2, दिस थिंग वी हैव जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। पहले हमारे पास 1 और 2 इक्वल नहीं थे, तो एक ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं बन सकती थी, इसलिए पहले इनको इक्वल लाने के लिए ये वाली AOO डैश एंड BOO डैश को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा था हमें, ठीक है। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्राइंगल AOM is congruent to triangle BOM. See which congruency this is? Side angle side congruency. This is SAS congruency. Congruent हैं तो corresponding parts you know equal होते हैं। I'll take AM equal to BM. Therefore AM equal to BM, देखो जरा AM equal to BM से क्या प्रूव हुआ, ध्यान से देखना प्लीज। AM equal to BM means OO डैश ने AB को क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मींस इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। AB को बाइसेक्ट कर दिया, मींस OO डैश इज बाइसेक्टर ऑफ AB, हाफ इज डन। हमें प्रूव क्या करना है? OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। बाइसेक्टर तो यहां से हो गया, अब परपेंडिकुलर। सी बाय CPCT ये दो एंगल्स इक्वल भी ले लेना, मैं फिर से इनकी नंबरिंग ही कर लेता हूँ, 3 and 4, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी CPCT से। लेकिन 3 and 4 आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑल्सो, ठीक है। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। दिस इज बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब देखें दो एंगल्स इक्वल, दोनों का सम 180, hence each is of, that is 90 degree. This implies each angle is of 90 degree. 3 and 4 90, so that means OO dash AB पे परपेंडिकुलर भी हो गया, मतलब परपेंडिकुलर भी हुआ और बाइसेक्ट भी कर दिया। Hence we can conclude now. Hence we can say OO dash is perpendicular bisector of AB. With this
we come to the end of this worksheet 10.3. This worksheet is now complete. ठीक है, thank you.